And just students, now we are studying the next property of elements, that is ionization enthalpy. So let us understand what this term is, ionization enthalpy. So it is a quantitative measure of tendency of an element to lose the electron. So basically इसको अगर हम simple terms में बात करें, so what is ionization enthalpy? It is the amount of energy required to remove the electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. So basically आपने ये जरूर पढ़ा है कि सोडियम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, so you will get sodium positive. Now the question is how electron is removed. So to remove the electron, we need to apply certain energy. We need to give certain energy to that particular element so that electron can be removed from its outermost shell. So this energy is termed as ionization enthalpy, ionization energy और ionization potential. ठीक है, इनमें से हम कुछ भी उसको बोलेंगे. So because energy is applied, ionization enthalpy is an endothermic process. So what do you mean by endothermic process? It is the process in which heat or energy is applied. So what are the units? Because energy की बात हो रही है, so the units are kilojoules per mole, kilocalories per mole और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल पर एटम. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो जूल्स में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.60 into 10 raised to the power minus 19 joules. ठीक है, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन हुआ हमारा. नेक्स्ट चलते हैं. ओके, सो दिस इज the value of 1 EV per atom in kilojoules per mole and kilocalories per mole. So this part is important when we are doing certain type of numericals. So we need to understand how to convert the units from one form to another. Okay, so ionization enthalpy में आपके पास एक और concept आ रहा है, which is first ionization enthalpy. Now, what does it mean? What do we mean by first ionization enthalpy? It basically means जब आपको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है? So it is the minimum amount of energy. किस चीज की एनर्जी? To remove the electron. कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? From the outermost orbit. किसका? From isolated gaseous neutral atom. तो ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं whenever we are understanding the concept. मिनिमम एनर्जी मतलब सबसे कितनी कम से कम एनर्जी लगानी पड़ेगी किस चीज के लिए? टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. कहां से? ऑब्वियसली जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वैलेंस शेल. और वैलेंस शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. Okay, now what type of atom is to be taken? Atom should be neutral, it should not be charged, and the atom should be in gaseous state. And it should be isolated because आपको पता है gas particles are far from each other. They have lot of empty space between them. So आपको इनमें से कोई भी एक एटम को आइसोलेट करना है. इसको पहले आप अलग कर लेंगे, आइसोलेट करेंगे सबसे, तो इट शुड बी आइसोलेटेड, it should be taken away. And gaseous form में है, isolated है, and one thing it should be neutral, it should not be charged. तो ऐसे एटम में से जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो जो भी आपको मिनिमम एनर्जी अप्लाई करनी है दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. I hope I am making myself clear.
तो यहाँ पे आपने कोई भी एलिमेंट लिया और उसमें कुछ एनर्जी अप्लाई किया तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव स्टेट बिकॉज उसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया है. सो जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और यहाँ पे जो आप एनर्जी लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. IE1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1. ठीक है, या फिर डेल्टा IH. ओके, दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाट अबाउट सेकेंड? जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला. ठीक है, सो दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एंड क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकलता बिकॉज एटम इज वेरी स्टेबल इन इट्स न्यूट्रल स्टेट. ठीक है, तो एटम अपने आप नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं निकलेगा, तो वी नीड टू ऑलवेज अप्लाई सर्टेन एनर्जी. तो आयोनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी हमेशा पॉजिटिव काउंट होती है. नाउ वी हैव अ नोट टू मेक कि आप जैसे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पीज लगाओगे, जो नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी इट विल बी ग्रेटर. सो द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्योंकि जैसे जैसे आप इनर जा रहे हो, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे यू आर गोइंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, forces of attractions are increasing. So more energy is required to remove the electron. Clear? So जैसे जैसे आप अंदर जाते रहोगे किसी भी एटम के, उसके इलेक्ट्रॉन्स, बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यू विल गो इनसाइड, डीप इनसाइड, डीप इनसाइड. So as you are moving towards the nucleus, the force of attraction is increasing and more energy is required. तो एक सिंपल सा ट्रेंड बनता है, third ionization enthalpy is always greater than second and it is always greater than first. ओके, सो दिस इज द ट्रेंड फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये चैप्टर में हमें मोस्टली ट्रेंड्स पढ़ने हैं. ठीक है, नाउ लेट अस ऑब्जर्व थ्रू दिस एनिमेशन. ओके, दिस इज एन एटम, the electron is outside, so as you are going deep inside, the forces of attraction will increase. ठीक है, so now we have one MCQ to solve. Ionization is in always positive, always negative. It can be positive, negative या none of these. जब भी आप किसी भी चीज को करने के लिए एनर्जी को सप्लाई करते हो, एनर्जी को देते हो, whenever energy is supplied, the value comes out to be positive. Therefore, ionization enthalpy will always be a positive number. Okay, it is generally an endothermic process, so it is a positive number. Okay, so what is the relationship between first and second ionization enthalpy? Second ionization enthalpy का मतलब होता है कि आप second electron निकाल रहे हो, means you are going deep inside the atom. So obviously, second ionization enthalpy will be greater than first. So now, which factors affect the आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आपको कैसे पता चलेगा किसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी से कितनी ज्यादा या कम है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं कि सोडियम और पोटाशियम में से किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो ये कैसे पता चलेगा? सो टू गिव सच आंसर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, हाउ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ओके, सो नाउ मूविंग टू द फैक्टर्स. सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज एटॉमिक साइज. अब आप देखिए, कंसेप्ट समझते हैं. एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, साइज बढ़ रहा है. ठीक है, तो साइज के बढ़ने से क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो इफ डिस्टेंस बिटवीन
न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो क्या होगा? अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट जितना साइज ज्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। देखो बेटा, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ केमिस्ट्री। इजी क्या होता है आप मुझे बताइए? इजी आप एनर्जी की टर्म्स में किसको बोलते हो? इजी वो होता है जिसके लिए एनर्जी कम लगती है ना? कोई काम कर रहे हो आप, आपकी एनर्जी कम लग रही है तो वो आपको इजी लगेगा, और किसी काम में अगर आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है तो आपको वो काम डिफिकल्ट लगेगा। सो इट मीन्स दैट as the size of the atom increases, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शंस कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव इजी कर सकते हैं मतलब एनर्जी कम लगेगी। आई होप आई एम क्लियर। सो व्हेन साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, साइज के इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीजेस बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। Second factor on which ionization enthalpy depends is nuclear charge. तो न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। सो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, like if you have sodium which is 11 and potassium which is 19, which will have more ionization enthalpy? जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज पोटेशियम का ज्यादा है, इट मीन्स दैट पोटेशियम विल हैव मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू सोडियम। ओके, देन कम्स स्क्रीनिंग इफेक्ट। When screening effect increases, ionization enthalpy decreases. अब ये screening effect क्या होता है? It is the attraction of the nucleus and valence electrons. ठीक है, आपके पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल्स हैं, एस पी डी एंड एफ। ठीक है, दिस इज एस, दिस इज पी, दिस इज डी एंड एफ। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डी और एफ में होगा तो शील्डिंग पुअर हो जाएगी, शील्डिंग विल बी पुअर। डी एंड एफ दे आर नॉट गुड शील्डर्स। ठीक है, तो जिनका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द शील्डिंग इफेक्ट। तो देन कम्स द पेनिट्रेशन इफेक्ट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फैक्टर। ठीक है, हमने अभी तीन फैक्टर्स पढ़े। द फर्स्ट फैक्टर वाज साइज, द सेकेंड फैक्टर वाज न्यूक्लियर चार्ज, द थर्ड फैक्टर वाज shielding effect, and now we are moving to the fourth factor which is penetration effect. So what is penetration effect? It is the tendency of orbital to move towards the nucleus. कोई भी orbital nucleus के कितना पास है। ठीक है, सो पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसे होता है? S का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है। S is very close to the nucleus, then we have P, then D and then F। तो जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब जो न्यूक्लियस के बहुत पास होगा, इसका मतलब उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाएगी। So when penetrating effect increases, ionization enthalpy increases because force of attraction also increases. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अगर समझना है तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझना है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। देन लास्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पता चलता है बेटा? जिस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, राइट? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड।
So if I write the electronic configuration of nitrogen and oxygen, it is 1s2, 2s2 and 2p3. And in case of oxygen, it is 1s2, 2s2 and 2p4. अब देखिए P3 जो है इट इज हाफ फिल्ड, P हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 6, तो यहाँ पे ये हाफ फिल्ड है, देयरफॉर इट विल बी मोर स्टेबल, देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोर देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन देखकर भी बता सकते हो आप कि किसी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा या ज्यादा होगा। So let's make a note here. ग्रुप 18 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, एज यू आर गोइंग अलोंग द पीरियड द साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल। तो साइज छोटा होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, प्लस इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज फुली फिल्ड, एस भी फुली फिल्ड है, पी भी फुली फिल्ड है, सो दे विल हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो इनमें से सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? तो ये जो है ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लिथियम सबसे ऊपर, देन वी हैव सोडियम, देन पोटेशियम एंड देन सीजियम। और हमने पढ़ा था एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। तो इसका मतलब सबसे बड़ा साइज सीजियम का है। इसका मतलब क्या हुआ, सीजियम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना सबसे इजी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, सीजियम। ठीक है, विच विल हैव लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द आंसर इज सीजियम।